میں تمہارے ظلم سہتے تھک چکی ہوں۔ مجھے معاف کر دو، طلاق دے دو یا جان سے مار دو۔ بے بسی سے کہتے وہ زمین پر گرتی چلی گئی، جسے دیکھ کر سگار سلگاتا آلیان فتح یابی سے مسکرایا۔ میں تمہیں مرتے دم تک طلاق نہیں دوں گا۔ میں نے بار بار کہا تھا میرے راستے میں مت آؤ، پر تم باز نہیں آئی۔ اور اب تو تم میرا نشہ بنتی جا رہی ہو مسز آلیان شاہ۔ اسے اپنے سہارے کھڑا کیا، پر وہ ہوش کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اسے عنقریب طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا، اور جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا جسے وہ نشہ کہہ رہا تھا وہ محبت تھی، جو عنقریب عشق بننے والی تھی۔ راشا جلال بڑے ہی پر اعتماد انداز میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی اور ایک سینئر لڑکی سے پوچھ کر اپنی پہلی کلاس لینے کے لیے کلاس روم میں داخل ہوئی۔ ویسے تو وہ یونیورسٹی میں چند بار پہلے بھی آ چکی تھی، مگر تب ایڈمیشن کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس کے ساتھ علی بھائی بھی ہوتے تھے۔ آج کلاسز کے لیے اس کا پہلا دن تھا۔ علی بھائی اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر ڈراپ کر کے آفس چلے گئے تھے۔ جب وہ کلاس روم میں پہنچی تو ابھی تک کوئی فیمیل یا میل پروفیسر نہیں آیا تھا، مگر کلاس روم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک قطار لڑکوں کی تھی اور دوسری لڑکیوں کی۔ آگے کی تمام سیٹس فل تھیں، جبکہ بالکل لاسٹ والی چیئرز پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ بھی جا کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی نے اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ اس کا نام زرناب تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے میں وہ دونوں اچھی فرینڈز بن گئی۔ پہلا سیمسٹر گزرا تو وہ اپنے کلاس فیلوز اور ڈپارٹمنٹ کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو جاننے پہچاننے لگی، جن میں زیادہ دلچسپی زرناب لیتی تھی۔ اس نے راشا کو اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک بہت مڈل کلاس غریب فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ اس کی امی نے کمیٹیاں ڈال کر اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا ہے۔ وہ چونکہ کسی دور دراز علاقے سے تھی، اسی لیے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ راشا ہر ممکن حد تک زرناب کی مدد کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کینٹین کا بل، اسائنمنٹ سمیت تمام چھوٹے موٹے خرچے اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ ایک دن وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھی تھی جب راشا کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بے حد ہینڈسم تھا۔ ان کے پاس سے گزرا مگر ان کی طرف دیکھا نہیں۔ اس کے چہرے کے خوبصورت مردانہ نقوش میں مغروریت جھلکتی تھی۔ زرناب نے اسے بتایا کہ یہ MBA ڈپارٹمنٹ کا آلیان شاہ ہے، جو اپنی ذہانت اور پرسنالٹی کی وجہ سے پوری یونیورسٹی میں مشہور ہے۔ نہایت ہی مغرور لڑکا ہے۔ کئی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، مگر یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا، اور اب تو اس کی ڈگری مکمل ہونے والی ہے۔ اس پر مرنے والی اس کے دیدار سے بھی محروم ہو جائیں گی بیچاری۔ زرناب کی انفارمیشن پر راشا نے حیرت سے دیکھا اور بولی، ویسے یار، جوائن تو یونی ہم نے ایک ہی دن کی، بٹ تمہارے پاس سب کے بارے میں اتنی انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ جواب میں زرناب مسکرا کر ٹال گئی۔ پھر ایک دن راشا کو حیرت کا جھٹکا لگا جب اس نے زرناب کو ڈپارٹمنٹ کی بیک سائڈ پر بنے گارڈن میں آلیان شاہ کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی بحث ہو رہی تھی۔ راشا معاملہ جاننے کے لیے بڑی بے صبری سے زرناب کا ویٹ کرنے لگی، مگر زرناب اس دن اس سے ملی ہی نہیں اور غائب رہی۔ دوسرے دن راشا نے اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی اور لڑکی ہوگی۔ راشا حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی آلیان شاہ کے ساتھ وہی تھی، مگر وہ جو ماننے سے انکاری تھی تو راشا بھی خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ دن بعد وہ زرناب کے ساتھ کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب ایک لڑکا ان کے پیچھے آیا اور زرناب سے بات کرنے کی کوشش کی۔ راشا نے دیکھا یہ وہی تھا جو اس دن آلیان شاہ کے ساتھ تھا۔ زرناب نے راشا کا ہاتھ پکڑا اور اس لڑکے کو اگنور کرتے تیز قدموں سے کینٹین میں داخل ہو گئی۔ راشا نے اس لڑکے کے بارے میں استفسار کیا تو کہنے لگی، میں نہیں جانتی، کئی دنوں سے مجھے فالو کر رہا ہے۔ راشا نسبتاً ایک نڈر لڑکی تھی۔ اس نے کہا، اگر یہ لڑکا تمہیں پریشان کر رہا ہے تو میں کرتی ہوں اس سے بات۔ باز نہ آیا تو وائس چانسلر سے شکایت کر دوں گی۔ وائس چانسلر میرے ماموں کے جاننے والے ہیں، مگر زرناب نے فوراً منع کر دیا اور کہا، نہیں، میں کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتی، خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو راشا چپ ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ ڈپارٹمنٹ کے پیچھے والے لان میں اکیلی بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔
कि आलियान शाह को अपनी तरफ आता देखकर हैरान रह गई। जरनाब अभी तक हॉस्टल से नहीं आई थी। आलियान शाह के चेहरे पर मगरूरियत के साथ गंभीर संजीदगी और तनफ्फुर की झलक भी नजर आ रही थी। एक्सक्यूज मी मिस, आपके वो आवारा दोस्त कहाँ है? उसने बेहद हकारत भरे अंदाज में कहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? एक पल के लिए वो हैरान रह गई, फिर दूसरे ही पल भड़क कर उसके मुकाबले खड़ी हो गई। जस्ट शट अप, जो पूछा है उसका जवाब दो, आलियान ने भड़क कर कहा। राशा गुस्से और हैरत से सुन रह गई। ये शख्स जिससे उसकी जान पहचान भी नहीं थी, भला उससे बदतमीजी क्यों कर रहा था? अभी वो यही सोच रही थी जब आलियान शाह ने उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, अपनी आवारा दोस्त को समझा देना, अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। धमकी देने के बाद वो पलटकर लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से चला गया। राशा आसपास के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अजीब नजरों से देखता पाकर आलियान शाह को जेरे लब गालियां देते अपनी किताबें उठाते वहां से तेजी से निकलती चली गई। उसे जरनाब पर हैरत हो रही थी। उसने राशा से झूठ क्यों बोला था कि आलियान शाह के साथ उस दिन वो नहीं थी? फिर जब जरनाब उसे मिली तो राशा ने उसे आलियान शाह की धमकी के बारे में बताया तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। राशा ने कहा, देखो जरनाब, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझसे छुपाओ मत, जो भी मसला है शेयर करो। मैं हर मुमकिन हद तक तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। जवाब में जरनाब आंसू बहाने लगी। राशा, जो लड़का उस दिन कैंटीन जाते हुए हमें फॉलो कर रहा था, वो आलियान शाह का दोस्त है और हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं कैसे उसने मेरा नंबर कहीं से हासिल कर लिया। मुझसे गलती हुई, मैंने एक काम के सिलसिले में उसकी हेल्प ले ली। फिर बाद में मुझे उसके बारे में पता चला वो लड़का अच्छा नहीं है, लड़कियों को यूज करने के बाद छोड़ देता है। उसकी असलियत मालूम होने के बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद से वो तंग कर रहा है, धमकियां दे रहा है। राशा हैरान रह गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जरनाब? उसने शिकवा किया तो जवाब में कहने लगी, इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम मेरे बारे में नेगेटिव ना सोचो। तुम पागल हो क्या? मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड हो, भला तुम्हारे बारे में मैं नेगेटिव सोच सकती हूँ? अब एक काम करो, मुझे नंबर दो उस लड़के का, मैं दिमाग दुरुस्त करती हूँ, उसका भी और उस बदतमीज आलियान शाह के भी। सरनाब पहले तो हिचकिचाई मगर फिर दे दिया। राशा ने कॉल मिलाई। आगे से जैसे ही अटेंड हुई वो शुरू हो गई। ओ मिस्टर, अपनी हद में रहो और उस बदतमीज जाहल आलियान शाह को भी लगाम डालो। जरनाब का पीछा छोड़ दो वरना बहुत बुरे नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसने बड़े एतमाद से धमकी दी जिसे सुनते आलियान शाह के चेहरे के उजलात तन गए। पल में ही वो पहचान गया था यह जरनाब की वही दोस्त थी जिसे वो धमकी देकर आया था। जस्ट शट अप, हद में तुम रहो और इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है, वरना आलियान शाह से टक्कर लेना बहुत महंगा पड़ेगा और इस यूनिवर्सिटी में ठहर नहीं पाओगी। उसकी आवाज सर्द और लहजा संगीन था, जिसे राशा ने किसी खातर में ना लाते हुए भड़क कर कहा, क्यों, तुम किसी मिनिस्टर की औलाद हो और यह यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप की मलकियत है क्या, जो मुझे यहाँ ठहरने नहीं दोगे? जस्ट शट अप। दूसरी तरफ आलियान शाह चिल्ला उठा, यू शट अप। राशा ने भी तुर्की बतुर्की कहकर फोन बंद कर दिया और जरनाब की तरफ देखा, जो चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात सजाए उसकी तरफ ही देख रही थी। अब क्या होगा राशा? ये आलियान शाह तो बहुत ही खतरनाक धमकियां दे रहा है, मुझे डर लग रहा है, वो रोहासी होकर कह रही थी। राशा जवाब में उसे तसल्लियां देने लगी कि आलियान शाह और उसका दोस्त उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लिहाजा वो परेशान ना हो। अगर दोबारा कुछ कहें तो फिर वो उनके खिलाफ एक्शन लेगी। जरनाब को उसकी तसल्लियों से कुछ हौसला तो हुआ, मगर मुकम्मल तौर पर वो खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन जब वो डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी और साथ ही जरनाब का नंबर भी ट्राई कर रही थी ताकि उसे बता सके कि वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई है, ताकि वो भी हॉस्टल से जल्दी निकले। ये उसकी रोज की रूटीन थी। डिपार्टमेंट पहुंचकर वो जरनाब को मैसेज या कॉल करती, तो तब वो हॉस्टल से निकलती और फिर दोनों इकट्ठे ही क्लासरूम में जाती। उसने एक बार फिर जरनाब को आलियान शाह के साथ खड़े देखा। डिपार्टमेंट की लेफ्ट साइड पर बने गार्डन में वो दरख्तों के नीचे खड़े थे। इस बार आलियान शाह अकेला था। उसका वो मजनू दोस्त फहद साथ नहीं था, जिसकी वजह से ये सारा मामला हो रहा था। आलियान शाह के चेहरे के तासुरात दूर से ही बता रहे थे कि वो जरनाब को बेइज्जत कर रहा था।
राशा तेजी से उसकी तरफ लपकी और करीब पहुंचकर बिना सोचे समझे आलियान शाह पर बरस पड़ी। घटिया इंसान, क्यों मेरे दोस्त के पीछे पड़े हो? अपने उस आवारा दोस्त को रोकने की बजाय मेरे दोस्त को हरासा कर रहे हो। मैं अभी वाइस प्रिंसिपल के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ, राशा ने इंतहाई गुस्से से कहा। जवाब में आलियान शाह के चेहरे के तासुरात खतरनाक हुए। तुम तुम बदतमीज जाहिल लड़की, इस मामले से दूर रहो वरना। आलियान शाह ने सख्त तेज भरे अंदाज में दांत पीसते हुए उसे वार्निंग दी। वरना? वरना क्या कर लोगे तुम? राशा 2 कदम आगे बढ़ी। राशा, तुम खामोश रहो प्लीज। क्यों खामोश रहूं? इस घटिया इंसान से पूछने तो दो मुझे कि ये क्या कर लेगा। परेशान खड़ी जरनाब ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बिल्कुल निडर अंदाज में आलियान शाह की सर्द और शरारे निकालती आंखों में आंखें डालकर गुर्राई। मैं वो कर सकता हूँ जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लिहाजा बेहतर यही है, अपनी जुबान को काबू में रखो और मेरे दोस्त के इस मामले से दूर रहो। आलियान शाह का बस नहीं चल रहा था। उस बदजुबान लड़की का मुंह तोड़ देता। दूसरी तरफ राशा के भी यही हाल था। मामला दोनों के दोस्तों का था, मगर लड़ वो आपस में रहे थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जिस तरह तुम्हारे दोस्त का मामला है, ये उसी तरह मेरे दोस्त का भी मामला है। जिस तरह तुम अपने दोस्त के मामले में बोल रहे हो, इसी तरह मैं भी अपने दोस्त के मामले में बोलूंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? राशा तिलमिलाई। जवाब में आलियान शाह ने एक मर्तबा फिर उसे फजूल बकवास से गुरेज करने और अपने रास्ते में ना आने की वार्निंग दी और खामोश खड़ी जरनाब से कहा, अगर उसके दोस्त को कुछ हुआ तो उसके हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। राशा उसकी उन धमकियों पर उसे मजीद जवाब देना चाहती थी, मगर जरनाब बार बार उसे रोक रही थी। आलियान शाह तनफ्फुर भरी निगाहों से घूरता वहां से चला गया था। राशा बड़ी देर तक उसके जाने के बाद भी उसे गालियां देती रही थी, जबकि जरनाब खामोश थी। उनके झगड़े पर आसपास के स्टूडेंट्स भी मुतवज्जा हो गए थे। आलियान शाह को तो सब जानते थे, इसलिए ये खबर यूनिवर्सिटी में फौरन नशर हो गई कि हमेशा लड़कियों को नो रिस्पॉन्स देने वाले आलियान शाह का एक लड़की से झगड़ा हो गया है। राशा वाइस चांसलर के पास आलियान शाह और उसके दोस्त की शिकायत करके जाना चाहती थी, मगर जरनाब राजी नहीं हो रही थी। राशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो मसला बढ़ने क्यों दे रही थी। पहले ही कंप्लेन कर देते तो आलियान शाह आज फिर उन्हें यूं धमकाने की जुर्रत ना करता। वो जरनाब पर बिगड़ती रही कि झगड़े के वक्त एक तो वो खुद भी गूंगी बनकर खड़ी रही और दूसरा उसे भी उस घटिया आलियान शाह की तबीयत सही से साफ नहीं करनी थी। जरनाब की एक ही रट थी कि वो मसला बढ़ाना नहीं चाहती। आलियान शाह और उसका दोस्त खुद ही पीछे हट जाएंगे। मजबूरन राशा को उसकी बात मानकर खामोश होना पड़ा, मगर दिल में वो जरनाब से सख्त नाराज थी। घर जाकर भी वो बहुत डिस्टर्ब रही। आलियान शाह की धमकियां और उसका बदतमीज अंदाज बार बार उसके जहन में घूमता उसका खून खौला रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आलियान शाह की जान ले ले। घर में उसकी कजन रोशी की शादी की तैयारियां चल रही थी। मम्मी, बड़ी ताई, छोटी ताई समेत घर की तमाम यंग जनरेशन तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। राशिद जो सबसे ज्यादा पुरजोश थी, अब उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। रोशी उसके बड़े ताया कमाल अहमद की इकलौती बेटी थी, जो महनाज फूफो की बहू बनने जा रही थी। बड़े ताया के बाद उसके वालिद जलाल अहमद थे। राशा से बड़ा एक भाई फुरकान था और शादीशुदा था। दूसरे नंबर पर अली था, फिर राशा थी, जबकि तीसरे भाई जमाल के 3 बच्चे थे जो सबसे छोटे थे। एक भरा भरा खानदान था जो एक 3 मंजिला खूबसूरत घर में प्यार और मोहब्बत से रह रहा था। उन तीनों भाइयों की बाजार एक ही बहन महनाज थी, मगर राशा ने माँ से सुन रखा था कि महनाज फूफो से बड़ी एक बहन अर्जुमंद फूफो भी थी, जो बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थी। 26 साल पहले उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। उसके बाद भाइयों ने उनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखा। वो कहाँ रहती थी ये राशा नहीं जानती थी। रात को वो जरनाब के साथ व्हाट्सएप पर बात कर रही थी जब उसे नंबर पर मैसेज मौसूल हुआ। नंबर अनजान था। राशा ने मैसेज खोला तो पढ़कर उसका दिमाग चटक गया। मैसेज आलियान शाह का था। राशा जलाल, मैं बार बार तुम्हारी बदतमीजी पर सिर्फ तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया तो उसका मतलब ये है कि लड़की होने की वजह से रियायत दे रहा हूँ। वरना मैं वो इंसान हूँ जो मामूली सी गलती पर भी अगले इंसान को पाताल में पहुंचा देता हूँ। लिहाजा एक बार फिर कह रहा हूँ, आज के बाद फिर मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना। राशा का दिमाग तो पहले ही खोल रहा था।
आलियान शाह का एक और धमकी वाला मैसेज पढ़कर तो उसके तन बदन में आग ही लग गई। उसने फौरन उसे जवाबी मैसेज किया, घटिया कमीने इंसान, मैं तुम्हारी किसी धमकी से डरने वाली नहीं। अगर दोबारा मेरे दोस्त और मेरे साथ तुमने या तुम्हारे दोस्त ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो अपनी खैर मनाना। दूसरी तरफ आलियान शाह एक बार फिर अपने लिए गालियां सुनकर भड़क उठा। जलील आवारा लड़की, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हारी और तुम्हारी उस खबीस दोस्त की असलियत से वाकिफ हूं मैं। गिफ्ट्स और पैसों के बदले रातें गुजारती हो लड़कों के साथ और मेरे सामने यूं अकड़कर धमकियां दे रही हो जैसे कोई पावर वाली मुअज्जज हस्ती हो तुम। बहुत समझाया था मैंने अपने दोस्त को, मत पड़ो इन चक्रों में। लड़कियां सिर्फ दौलत की भूखी होती हैं, मगर नहीं माना और तुम्हारे बदचलन दोस्त के झांसे में आकर उससे सच्ची मोहब्बत कर बैठा, जो चलती फिरती टैक्सी है। आलियान शाह के अल्फाज थे या बर्छियां जो राशा के दिलो दिमाग में इतने सख्ती से पेवस्त हुई कि वो तकलीफ से बिलबिला उठी। फौरन ही उसे कॉल मिलाई मगर दूसरी तरफ से नंबर बंद मिला। गालियों भरा मैसेज लिखकर भेजा मगर कोई जवाब मौसूल न हुआ। आलियान शाह ने यकीनन मैसेज सेंड करने के बाद उसे ब्लॉक कर दिया था। उसने फौरन जरनाब को उसके मैसेजेस फॉरवर्ड किए तो दचका रह गई जब जरनाब ने आगे से कहा, छोड़ो यार, तुम आलियान शाह की बकवास को इग्नोर करो, मैं अपना मसला हल कर लूंगी। बस तुम अब उसे कोई जवाब न देना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जवाब देने से मामला और ख़राब हो जाए, और प्लीज़ मेरी बात को माइंड भी मत करना। राशा कितनी देर हैरत से जरनाब की बात पर गौर करती रही। आलियान शाह ने उसे इतनी बड़ी गाली दी, आवारा, बदचलन कहा, और सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी वजह से राशा को भी। मगर जरनाब का कहना था कि उसे जवाब न दे, इग्नोर करे। राशा को जरनाब की बात पर अफसोस हुआ। उसने दोबारा कोई बात न की, लेकिन गमो गुस्से से उसे सारी रात नींद न आई। वो बेचैनी से सुबह का इंतजार करती रही ताकि यूनिवर्सिटी पहुंचकर आलियान शाह का मुंह तोड़ सके, जिसने उसे इतनी गिरी हुई बातें कही थी। उसके अंदर गुस्से के इतने शरारे दौड़ रहे थे कि वो मम्मी और ताई लोगों के कहने के बावजूद बिना नाश्ते के यूनिवर्सिटी आई थी। आलियान शाह के डिपार्टमेंट का उसे पता था। आलियान शाह उसे अपने दोस्तों के साथ डिपार्टमेंट लॉन में ही नजर आ गया था। वो बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके सामने जा खड़ी हुई। उसे अपने सामने यूं अचानक और तन कर खड़े होते देखा तो वो पहले तो वो चौंका, फिर उसके चेहरे पर इंतहाई सर्द नागवार तासुरात उभरे, जबकि उसके दोस्तों के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे। घटिया इंसान, क्या बकवास की है, आवारा, बदचलन और पैसों पर बिकने वाली तुम्हारे घर में होंगी। पहले अपने घर की औरतों का पता करो, दूसरों के बारे में बकवास बाद में करना। वो गुस्से से कपकपाती एक ही सांस में कह गई। आलियान का चेहरा गैज़ो गजब से सुर्ख हो गया। बदतमीज लड़की। वो तैश के मारे उसकी तरफ बढ़ा मगर उसके दोस्तों ने उसे पकड़कर पीछे कर दिया और साथ ही राशा से इल्तिजा करने लगे कि वो वहां से चली जाए। मगर राशा ही क्या जो खाइफ होती और बात मान लेती। आलियान शाह को अच्छी खासी सुनाने के बाद वो सीधी वाइस चांसलर के ऑफिस पहुंची थी और उन्हें सारी बात बताई। वाइस चांसलर अब्दुल करीम राशा को उसके अंकल कामरान की वजह से जानते थे। उन्होंने फौरन आलियान शाह के खिलाफ नोटिस ले लिया और उसे अपने ऑफिस तलब कर लिया। वाइस चांसलर ने बारी बारी दोनों की बात सुनी और फिर तस्दीक के लिए जरनाब और फहद को बुला लिया। फहद ने तस्दीक की कि मसला उनकी वजह से क्रिएट हुआ है। अलबत्ता जब वाइस चांसलर ने राशा की कही गई बातों की तस्दीक जरनाब से की कि क्या ये लड़के तुम्हें तंग कर रहे थे, धमका रहे थे, तो वो साफ मुकर गई। राशा हैरान रह गई। जरनाब का मुकरना राशा के केस को कमजोर कर गया और उसकी इस तवक्को पर पानी फिर गया जो उसने सोचा हुआ था कि आलियान शाह की बेइज्जती होगी। उसके बजाय वाइस चांसलर ने दोनों को नरमी से समझा दिया। राशा उतरे हुए चेहरे के साथ जब ऑफिस से निकल रही थी तो यूं ही उसकी नजर आलियान शाह पर पड़ी, जिसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। आंखों में आए पानी को अंदर धकेलने की कोशिश करते हुए वो तेज कदमों से वहां से निकली थी। उसके बाद उसका यूनिमेट हेडने को दिल नहीं किया और वो घर आ गई। एक हफ्ता वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। उसे जरनाब से बहुत शदीद गिला था। इस दौरान उसने एक बार भी राशा से कांटेक्ट नहीं किया। और फिर जब राशा ने अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो यह देखकर धचका लगा, जरनाब ने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसने कितने एहसानात किए थे जरनाब पर। उसके सेकंड सेमेस्टर की सारी फीस राशा ने जमा कराई थी। इसके अलावा कितनी बार महंगे गिफ्ट्स और कपड़े दिलाए, कैंटीन के बिल और बाकी चीज़ों के खर्चे तो किसी खातर में ही नहीं थे। राशा ने कभी हल्के से अंदाज में भी उसे नहीं जिताया था। वो इतनी बेमरवत निकलेगी उसने सोचा भी नहीं था। एक हफ्ते बाद जब वो यूनिवर्सिटी गई तो जरनाब ने उसे देखकर मुंह फेर लिया।
राशा का अफसोस मजीद बढ़ गया। फिर उसी दिन उसने जरनाब को फहद के साथ कैंटीन में बैठे देखा तो मजीद धचका लगा। फिर उसकी क्लास फेलो और जरनाब की रूममेट मारिया ने उसे जरनाब की असलियत के बारे में बताया कि वो एक नंबर की करेक्टरलेस लड़की है। नित नए लड़कों से दोस्तियां करना, उनसे गिफ्ट्स लेना उसका मनपसंद मशगला है। कभी कभी वो रात को हॉस्टल से गायब रहती है। सुनने में आया है कि रात को बॉयज के साथ जाती है। मारिया ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम उसके बारे में कैसे नहीं जानती भला? जरनाब की असलियत जानकर राशा को मजीद गहरा धचका लगा। किस कदर मक्कार लड़की थी वो। राशा को एक एक करके उसकी सारी मशकूक हरकतें याद आई, जिन पर उसने पहले कभी तवज्जो नहीं दी थी। मारिया ने उसे यह भी बताया कि आलियान शाह तक रसाई के लिए जरनाब ने उसके दोस्त फहद से दोस्ती की और फहद को सीरियस होता देखकर हटने की कोशिश की, तो आलियान शाह अपने दोस्त की मदद को आगे आया और फिर न जाने ऐसा क्या किया कि जरनाब को फहद के साथ अपना रिलेशनशिप बहाल करना पड़ा। राशा का दिल, उसका एतमाद इतनी बुरी तरह से टूटा था कि अब यूनिवर्सिटी जाने को भी दिल नहीं करता था। मारे बांधे वो कभी कभार जाती और क्लासेस अटेंड करके वापस आ जाती। जरनाब से सामना होता तो दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेती थी। एक दिन वो किसी काम से एडमिन ऑफिस गई तो कॉरिडोर मुड़ते ही किसी से बुरी तरह टकरा गई। खुद को संभाल कर देखा तो आलियान शाह को अपनी तरफ नागवार नजरों से देखता पाकर राशा के पूरे वजूद में गुस्से की लहर दौड़ गई। अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? कितनी बार कह चुका हूँ मेरे रास्ते में आना छोड़ दो। आलियान शाह सर्दो हकारत भरे अंदाज में कहता आगे बढ़ने लगा था, जब राशा की नफरत भरी आवाज पर रुका। अंधी मैं नहीं तुम हो, और मुझे कोई शौक नहीं तुम जैसे घटिया और गिरे हुए शख्स के रास्ते में आने का। सो अपनी ये खुशफहमी दूर कर लो, लानत भेजती हूँ मैं तुम जैसे इंसान पर। आलियान शाह ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते इश्ताल पर काबू पाया और उसके इतने करीब आ गया कि राशा घबराकर एक कदम पीछे हुई, मगर पीछे दीवार थी। आलियान शाह की आंखों से जैसे आग की लपेटें निकल रही थी। एक हाथ दीवार पर उसके दाएं तरफ रखते वो हल्का सा उसकी तरफ झुका। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इस जुबान दराजी की तुम्हें ऐसी सजा दे सकता हूँ कि दोबारा जुबान चलाना तो दूर, मेरी नजरों में देखने के भी काबिल नहीं रहोगी। आलियान शाह की सरसराती आवाज पर पहली बार राशा को अपने वजूद में खौफ की लहरें उठती महसूस हुई। वो पलटकर वहां से भागी। आलियान शाह की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। उस दिन के बाद राशा ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था। व्हाट्सएप पर क्लास के ग्रुप से रोज के लेक्चर्स के नोट्स मिल जाते थे। राशा ने घर पर ही तीसरे सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दी। रोशी की शादी भी करीब आ पहुंची थी। राशा ने अपने आप को मसरूफ कर लिया था। रोशी की शादी पर एक मसला उठ खड़ा हुआ जब महनाज पुप्पो ने कहा वो अर्जुमंद पुप्पो को बुलाएंगे। छोटे भाई जमाल तो चुप रहे, मगर बड़े दोनों ने मुखालफत की। लेकिन महनाज पुप्पो ने बड़ी मेहनत करके मिलाकर उनको मना लिया। और फिर रोशी की मेहंदी वाले दिन यंग जनरेशन के साथ राशा ने भी पहली बार अर्जुमंद पुप्पो को देखा। उनका हुलिया भी बता रहा था कि उन्होंने अमीर खानदान में शादी की थी। रोशी की रुखसती से एक दिन पहले महनाज पुप्पो ने अपने छोटे बेटे असफन के लिए राशा का रिश्ता मांग लिया। मम्मी पापा ने उससे पूछा तो राशा ने उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। महनाज पुप्पो का घराना अगरचा बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। बड़ा बेटा फराज, जिससे रोशी की शादी हो रही थी, वो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, मगर असफन अभी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन जलाल अहमद ने बहन को मना करना या टालना मुनासिब न समझा। फिर महनाज पुप्पो के कहने पर राशा, रोशी और फराज की शादी वाले दिन राशा और असफन की मंगनी की तकरीब सजाई गई। जब राशा सजी सवरी स्टेज पर असफन के पहलू में बैठी, उसके हाथ से अंगूठी पहन रही थी, तो स्टेज से काफी फासले पर खड़े ब्लैक चश्मा लगाए शख्स की आंखों में शदीद तहैयर था। वो मम्मी के बेहद इसरार पर उन्हें यहाँ लेकर आया था, क्योंकि ड्राइवर छुट्टी पर था और इसलिए आलियान को आना पड़ा। मगर वो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की राशा जलाल, जिससे वो शदीद नफरत करता है, वो उसकी कजन निकलेगी। खैर, आलियान शाह को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस इंकिशाफ से, क्योंकि महनाज खाला के अलावा वो अपने तीनों मामुओं से नफरत करता था, जिन्होंने पसंद की शादी को एक जुर्म बनाकर 26 साल तक उसकी माँ से रिश्ता नाता खत्म किए रखा और जायदाद में से उसका हिस्सा भी नहीं दिया। स्टेज पर बैठी राशा जलाल के चेहरे की मुस्कुराहट को वो नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी दी गई एक एक गाली आलियान शाह के दिमाग में रिवाइंड हो रही थी। वहीं खड़े खड़े उसने खुद से अहद किया कि वो राशा जलाल के चेहरे की मुस्कुराहट को आंसुओं में बदल देगा। इसके बाद आलियान शाह का इंतजार शुरू हो गया। 2 महीने बाद राशा जलाल के एग्जाम्स के बाद उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई।
आलियान को ये खबर मम्मी के जरिए पता चली तो वो अलर्ट हो गया। इतने अरसे से बनाए गए पैगाम को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया था। मेहंदी वाले दिन जब वो पार्लर से तैयार होने गई तो आलियान शाह ने उसे अगवा कर लिया और एक हफ्ता अपनी कैद में रखा। लेकिन इस दौरान वो राशा जलाल के सामने नहीं गया और ना उसे ये पता चलने दिया कि उसे अगवा किसने और किस मकसद के तहत किया था। एक हफ्ते बाद इसी तरह चुपचाप उसे आज़ाद कर दिया गया, जिस तरह चुपचाप उसे उठाया गया था। वो उजड़ी हालत में घर पहुंची तो वो सब जो ये समझते थे कि वो किसी के साथ भाग गई थी, उसे दोबारा देखकर गुस्से से भभर उठे। जलाल अहमद और फुरकान तो उसे एक मिनट भी घर में बर्दाश्त करने को तैयार न थे। वो रोती रही, बार बार कहती रही कि उसे किसी ने अगवा किया था। वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मगर कोई यकीन करने को तैयार न था। असफन के कहने पर महनाज फुप्पो रिश्ते से माजरत कर गई थी। खानदान भर में बदनामी हो चुकी थी। कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। एक हफ्ता घर से बाहर रहने वाली लड़की की बात पर कोई भी भरोसा करने को तैयार न था कि उसकी इज्जत महफूज रही थी। छोटी ताई ने तो इंतहाई तंजिया अंदाज में कहा, अच्छा, जिनके पास तुम रही वो शायद कोई फरिश्ते या जिन भूत थे, जिन्होंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया और एक हफ्ता खाली देखने के बाद छोड़ गए। इन अल्फाज पर राशा शर्म और दुख से कटकर रह गई। वो राशा जलाल जो घर भर की लाडली थी, इस हादसे के बाद उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। सारा दिन वो अपने कमरे में पड़ी रोती या सोचती रहती, सिवाय मम्मी के कोई उसके कमरे में न आता। और मम्मी का रवैया भी खुश्क होता था। उसके खानदान से बाहर रिश्ते की तलाश हो रही थी कि अचानक अर्जुमन फूफो ने अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांगकर पूरे खानदान को हैरत ज़दा कर दिया। जलाल अहमद ने जिस बहन से 26 साल तक ताल्लुक खत्म किए रखा, उसी बहन के अब वो एहसानमंद थे, जो सब कुछ जानने के बाद भी उनकी बेटी को बहू बना रही थी। हालांकि उनका बेटा आलियान शाह लाखों में एक था, जिससे राशा से लाख दर्जे अच्छी लड़की मिल सकती थी। सारा खानदान अर्जुमन बानो को सराह रहा था कि जिस भाई ने उन्हें 26 साल तक बहन न समझा, उसी भाई की दाग लगी बेटी को अपना रही थी वो। दूसरी तरफ राशा की हालत एक जिंदा लाश की तरह थी। उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा था, उसका निकाह किससे हो रहा था, उसे किसी भी चीज से दिलचस्पी नहीं थी। निकाहनामे पर उसने मुर्दा एहसासात के साथ साइन किए। ये तक नहीं देखा कि जिससे उसके जिस्मो जान का मालिक बनाया जा रहा था, उसका नाम क्या था। रुखसती के वक्त सिर्फ मम्मी और अली भाई ने उससे मिलते हुए आंसू बहाए, बाकी कोई उससे न मिला। राशा बिल्कुल मंजमंद असाब और साकत वजूद लिए हुए थी। न जाने कितना सफर करके उसे एक सजे हुए रूम में पहुंचाया गया। अर्जुमन पुप्पो मुसलसल उसके साथ थी। उनका रवैया नर्म था। वो राशा को रेस्ट करने और आलियान को भेजने का कहते हुए बाहर निकल गई, मगर अपनी सोचों में गुम राशा आलियान के नाम पर तवज्जो न दे सकी। वो तो जब आलियान शाह उसके सामने आया और हकारत भरे अंदाज में उससे मुखातिब हुआ, तो तब वो न सिर्फ चौंकी बल्कि फटी फटी निगाहों से उसे देखती रह गई। सो मिस राशा जलाल, कैसा लग रहा है इतनी जिल्लत सहने के बाद? देख लो, तुमने तो यूनिवर्सिटी में गैर लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब की, मगर मैंने तुम्हारे पूरे खानदान के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी, और तुम्हें मालूम भी ना हो सका कि ऐसा करने वाला है कौन। पहले तो मुझे तुमसे सिर्फ यूनी वाली बदतमीजियों का हिसाब लेना था, मगर फिर जब यह पता चला कि तुम तो उस कमीने जलाल अहमद की बेटी हो, जिसने अपने दूसरे कमीने भाइयों के साथ मिलकर मेरी माँ के लिए पसंद की शादी करना गुनाह करार देते हुए 26 साल तक उन्हें उनके हक से महरूम रखा, यहाँ तक कि जब पापा की वफात के बाद हम पर बुरा वक्त आया और मम्मी उनके पास हाथ फैलाने गई, तब भी उन बेहिस लोगों को हम पर रहम ना आया और मम्मी को बेइज्जत करके भगा दिया। मम्मी ने तो भाई की मोहब्बत, उनकी हमदर्दी, तुम्हें बहू बनाया, मगर मैंने तुमसे शादी सिर्फ हिसाब किताब करने के लिए की, वो भी डबल हिसाब। ना सिर्फ मेरे साथ की गई अपनी बदतमीजियों का हिसाब दोगी तुम, बल्कि अपने बाप और चचाओं की मम्मी के साथ की गई ज्यादतियों और नाइंसाफियों का हिसाब भी देना होगा। आलियान शाह के इंकशाफात से उसके सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो फैली तहैयर ज़दा आंखों से उसे देखती रही। आलियान शाह के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। वो उसके अर्जुमन फूफो का बेटा था। उसी ने उसे अगवा करके सबकी नज़रों से गिराया था और फिर मजीद इंतकाम के लिए शादी की। उस पर यह इंकशाफात एक साथ हुए थे। आलियान शाह फातिहाना अंदाज में उसे देखता हुआ उसके करीब आया और किसी बेजान चीज़ की तरह उसे खींचकर बिस्तर से उतारा और नहायत सर्द आवाज़ में बोला, आज के बाद मुझे मेरे बेड पर अपने नापाक वजूद समेत नजर ना आओ तुम। तुमसे निकाह मैंने बदला लेने के लिए किया है, अब तुम जलोगे मेरे बदले की उस आग में।
घटिया कहती थी ना मुझे। अब बड़े अच्छे से तुम्हें बताऊंगा कि घटियापन होता क्या है। कहने के साथ ही उसने बड़ी बेरहमी से उसे धक्का देकर खुद से दूर धकेला तो वह लड़खड़ा सी गई और करीब रखी मेज के साथ उसका घुटना बुरी तरह टकराया। तकलीफ की शिद्दत से उसके मुंह से कराह निकल गई। आलियान शाह उसे नफरत और हकारत भरी नजरों से घूर रहा था। मेरा वजूद नापाक नहीं है, तुमने ही अगवा किया मुझे, तो अब ये क्यों? वो अपनी बात मुकम्मल न कर सकी, गले में आंसुओं का गोला सा अटक गया। हाँ, मेरी कैद में तो तुम महफूज रही, मगर उससे पहले अपने उस आवारा दोस्त के साथ मिलकर न जाने क्या क्या गुल खिलाती रही। यह तो मैं नहीं जानता ना। और तुम्हारी वो दोस्त लड़कों से पैसे लेकर उनके साथ होटल के रूम्स में जाती थी। सच सच बताओ, तुम किस किस के साथ और कितनी बार गई? आलियान शाह का लहजा मशकूक और आवाज़ नफरत, हकारत और दरुस्तगी से भरपूर थी। राशा की तो वो हालत थी कि काटो तो बदन में जैसे लहू नहीं। उसका दिमाग चकराने लगा था। अगले ही पल वो उसकी बाहों में झूलकर होश खो बैठी थी। जब होश आया तो खुद को बेड पर पाया। आलियान कमरे में नहीं था। वो उठ बैठी। अर्जुमन फूफो उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। राशा फ्रेश होकर झिझकते हुए उनके साथ डाइनिंग टेबल पर आई तो आलियान से मिलता जुलता साथ एक और शख्स भी मौजूद था, जिसका तो आरिफ फूफो ने अपने बड़े बेटे के तौर पर करवाया। उसका नाम उमर शाह था। राशा ने आहिस्तगी से सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने सर हिलाकर दिया। आलियान की तरह शायद वो भी राशा और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करते थे। उनके जवाब देने के अंदाज से राशा को महसूस हुआ सिर्फ अर्जुमन फूफो ही थी जो उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आ रही थी। आलियान माँ को उस लड़की से प्यार जताता देखकर पीछोताप खा रहा था। नाश्ते के बाद जब वो कमरे में आई तो आलियान भी उसके पीछे चला आया। ज्यादा मसलूम बनकर मम्मी की हमदर्दी लेने की कोशिश ना करो। अगर मम्मी को तुम्हारी यूनिवर्सिटी के करतूत बता दो ना कि तुम वहाँ क्या क्या गुल खिलाती रही हो, तो उनका ये प्यार भरा रवैया नफरत में बदल जाएगा। आलियान के नुकीले अल्फाज एक बार फिर उसका दिल जख्मी कर गए थे। क्या किया है मैंने यूनिवर्सिटी में? मेरी जरनाब से दोस्ती जरूर थी, मगर अल्लाह जानता है मैं उसकी असलियत से बेखबर थी। मुझे नहीं पता था उसकी लड़कों से दोस्तियां थी। राशा रुंधी हुई आवाज में बोली, झूठ बोल रही हो तुम घटिया लड़की। अगर इतनी ही अनजान होती तो इस मामले में क्यों पड़ती, जिस पर मैंने तुम्हें बार बार वार्न किया था? वो बोला नहीं, गुर्राया था। राशा ने डुबडुबाई निगाहों से उसे देखा और कुछ कहे बिना सोफे पर जाकर लेट गई। आलियान एक तनफुर भरी निगाह उस पर डालता कमरे से बाहर निकल गया था। रात का खाना फूफो न जाने क्यों कमरे में ही दे गई थी। फिर जब आलियान कमरे में आया तो उसे वजह मालूम हो गई। उसी ने फूफो से कहा था अगर वो टेबल पर आएगी तो वो वहां बैठकर खाना नहीं खाएगा। राशा ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। सोने के टाइम जब आलियान ने उसको बेड पर आने को कहा तो वो हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, कल रात तो आपने कहा था मैं आपके बेड से दूर रहूं। हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हें सोने के लिए बुला रहा हूँ? अब इस रूम में खाली तुम्हें सजा कर तो नहीं रख सकता। कुछ तो काम आना होगा मेरे। अब मजीद कोई सवाल किए बिना चुपचाप बेड पर आओ, हकारत भरे अंदाज में कहते आखिर में उसका लहजा इंतहाई दुरुस्त हो गया। राशा अपनी जगह से हिली भी नहीं। सर झुकाए साकत खड़ी रही तो आलियान खुद ही दांत पीसता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और बाजू से पकड़कर बेड पर पटक दिया। राशा ने मुजाहमत करने की कोशिश की, मगर आलियान शाह के आगे उसकी मुजाहमत कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी इल्तिजाओं और आंसुओं को नजरअंदाज किए वो उसे अपनी वहशत की आग में जलाता रहा। सुबह हुई तो उसके धुतकारने पर राशा अपने दुखते वजूद को मुश्किल संभालते बेड से उठी थी। उसके बाद उसकी तस्लील करना आलियान शाह ने जैसे अपना मामूल बना लिया था। एक दिन राशा ने तंग आकर रोते हुए अर्जुमन फूफो को यूनिवर्सिटी के वाकयात से लेकर आलियान के अगवा करने, फिर बदले के लिए शादी और फिर मौजूदा सलूक के बारे में सब बता दिया। बेटे के करतूत जानकर अर्जुमन फूफो को सख्त सदमा पहुंचा। उन्होंने आलियान को बुलाकर बासपुरस की और फिर उसके डिटाई से एतराफ करने पर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ खाकर आलियान राशा पर गजबनाक हो गया और माँ के रोकने के बावजूद उसी वक्त राशा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। वो उसे घर से बहुत दूर एक पिसमानदा इलाके के किसी फ्लैट में ले आया था। राशा बहुत डर रही थी कि न जाने वो उसके साथ और कितना बदतरीन सलूक करेगा। और फिर 3 दिन वो आलियान के साथ उस फ्लैट में रही और इन 3 दिनों में आलियान शाह की उसके साथ वो सलूक किया कि वो सदियों की बीमार नजर आने लगी। चौथे रोज माँ की बीमारी की खबर सुनकर वो उसे लेकर घर वापस आया। अर्जुमन फूफो की तबीयत इंतहाई खराब थी। वो आईसीयू में थी। राशा उनके लिए शिद्दत से दुआ कर रही थी। आलियान भी शदीद शर्मिंदा और परेशान था।
2 दिन आईसीयू में रहने के बाद अर्जुमन फूफो चल बसी थी। राशा को जहां अर्जुमन फूफो की मौत से शदीद धचका लगा था, वहां आलियान का रवैया उसके साथ पहले से भी बदतर हो गया था। उसने माँ की मौत का जिम्मेदार भी राशा को ठहराया था कि अगर वो मम्मी को सब कुछ ना बताती तो मम्मी को सदमा ना पहुंचता और उनकी जान ना जाती। अगरचे माँ की डेथ से वो शदीद दुखी जरूर था, मगर दूसरी तरफ अब वो राशा जलाल और उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद था। आरिस भाई अपनी किसी क्लास फेलो से शादी करके लंदन चले गए थे। अगर वो होते भी तो अपने काम से काम रखते। आलियान की तरह उसे भी राशा जलाल की फैमिली से नफरत थी, जिन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया था। और आरिस ने अपने बाप के एक दोस्त की मदद से अपने डूबे कारोबार को नए सिरे से खड़ा करके यहाँ तक लाया था कि मम्मी और आलियान को अच्छी जिंदगी दे सके। लंदन सेटल होने से कबल उसने कारोबार में आलियान को बराबर का हिस्सा दे दिया था। आलियान अब बिल्कुल आज़ाद था। उसका इरादा था कि वो जलाल अहमद को जिक पहुंचाने के लिए उसकी बेटी को तलाक देकर उसके घर भेज देगा। उसने राशा पर जिंदगी तंग कर दी थी। उसकी हर रात आलियान शाह की बाहों में तड़पते हुए गुजरती। एक दिन वो उसके सामने फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो आलियान, या फिर जान से मार दो। मुझ में और हिम्मत नहीं है, तुम्हारे जुल्म सहते सहते थक चुकी हूँ। मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रही। खुदा का वास्ता है, या तो मुझ पर रहम खाकर आज़ाद कर दो या फिर मेरी जान ले लो। वो बुरी तरह रोते इल्तजा करते उसके कदमों के करीब जमीन पर गिरती चली गई। आलियान शाह जो सोफे पर टांग रखे बैठा सिगार सुलगा रहा था, उसे यूं अपने कदमों में गिरे देखकर फतामंदी से मुस्कुराया। राशा के हाथ अब उसके पाँव पर थे। जैसे आलियान ने झटका नहीं, शायद उसे अच्छा लग रहा था यूं उसको अपने पाँव पकड़े देखना। मैं ना तो तुम्हें तलाक दूंगा कभी और ना तुम्हें आज़ाद करूंगा। तुम जिंदा रहोगी मेरी कैद में और अपने बाप चचाओं के अमालों का बदला चुकाओगी। तुम्हें बहुत कहा था कि मेरे रास्ते में मत आओ। अगर तुमने यूनिवर्सिटी में वो सब ना किया होता तो तुम्हें अपनी कज़न के रूप में देखने के बाद भी मेरे अंदर इंतकाम की आग ना भड़क उठती। जिस तरह बाकी सबसे नफरत करता हूँ उसी तरह तुम्हें भी इग्नोर कर देता। मेरी नज़र में ना आती तुम। और अब तो तुम सिर्फ मेरा इंतकाम ही नहीं, नशा भी बनती जा रही हो मिसेस आलियान शाह। सर्द लहजे में कहते हुए आखिर में वो मुस्कुराया था। उसे ये नहीं मालूम था जैसे वो महज नशा कह रहा था। उसकी वो मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था और अनकरीब वो उसका इश्क भी बनने वाली थी। राशा ने बेबसी और हसरत से उसे मुस्कुराते देखा और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से उठने लगी थी। जब उसका सर चकराया था, आलियान सिगार बुझाकर उठ खड़ा हुआ। अब उठो और मेरे कपड़े इस्त्री करो। उसके चकराते सर को इग्नोर करते आलियान ने उसे बाजू से पकड़ते एक झटके से उठाया और अपने सहारे खड़ा किया। मगर वो होश खोते उसकी बाहों में झूल गई। उसे बेहोश होता देखकर न जाने क्यों आलियान परेशान हो उठा था। उसने उसे होश में लाने की कोशिश की और फिर नाकामी पर डॉक्टर को बुला लिया तो पता चला वो प्रेग्नेंट थी। इस खबर ने उसे अजीब से एहसासात में मुब्तला कर दिया। वो उसे तलाक देने का इरादा रखता था। कुछ देर पहले वो भी तलाक मांग रही थी। आलियान को दिल में शदीद गुस्सा आया उसके मुतालबे पर। खुद से तलाक देता तो ठीक था, मगर वो कौन होती थी तलाक मांगने वाली। इसलिए उसे डराने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर तलाक का इरादा बदल दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हैरत अंगेज तौर पर उसका सलूक पहले से कुछ बेहतर हो गया। अब वो उससे घर का काम भी नहीं कराता था और अच्छी खुराक भी जबरदस्ती खिलाता था, मगर साथ साथ ये भी जिताता रहता कि ये सब वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा है। डिलीवरी के बाद वो अपना बच्चा ले लेगा और उसे तलाक दे देगा। राशा जो पहले खुद तलाक चाहती थी अब तलाक के नाम पर खौफजदा हो जाती थी। उसके लिए यह तस्वर ही सुहाने रूह था कि आलियान शाह उससे उसका बच्चा छीन लेगा। इसी खौफ से वो टेंशन में रहने लगी, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज होते होते रह गया। डॉक्टर ने आलियान को तनबीह करते हुए उसे खुश रहने का कहा तो उसने राशा को मेंटली टॉर्चर करना बंद कर दिया। उसे पता भी नहीं चला डॉक्टर की हिदायत पर मजबूरी में अपना रवैया उसके साथ नॉर्मल रखते तब उसके दिल में राशा जलाल के लिए नरम गरम मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए। आलियान शाह खुद भी हैरान था। राशा ने उसे एक खूबसूरत सी बेटी का तोहफा दिया था। बेटी को गोद में लिए जब वो मोहब्बत भरे अंदाज में उसे चूम रहा था तो अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ। राशा जलाल उसकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, यूं जैसे कोई बच्चा प्यार के लिए माँ को तरसी हुई निगाहों से देखता है।
आलियान शाह का दिल कटकर रह गया। उसने बेटी को काट में लिटाया और बेइख्तियारी की कैफियत में चलता हुआ राशा के करीब आकर झुका। अगले ही पल उसके लब राशा के माथे पर थे। वो उसे मोतबर कर रहा था। राशा ने सुकून से आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से खामोश पानी बह रहा था, जिनको आलियान शाह अपनी पूरम पर चुन रहा था। 3 दिन बाद उसने अपनी बेटी के अकीके की तकरीब रखी, जिसमें राशा की पूरी फैमिली को बुलाया। और फिर राशा ने देखा, वो शर्मिंदा से लहजे में उसके पूरे खानदान के सामने अपनी गलती का एतराफ कर रहा था कि उसी ने राशा को अगवा करके उसकी शादी रुकवाई और फिर असफंद को अच्छी जॉब का लालच देकर राशा से शादी से इनकार करने को कहा। और फिर वो एक एक बात बताता गया। उसके बाप और भाइयों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए। वो राशा को साथ ले जाना और आलियान से ताल्लुक तोड़ना चाहते थे। आलियान ने फैसला राशा पर छोड़ दिया था कि अगर वो चाहे तो उसे छोड़कर अपने घर वालों के साथ जा सकती है। वो उससे बेटी भी नहीं छीनेगा, बस राशा को कभी कभार उसे अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त देनी होगी। मगर राशा का फैसला उसे हैरान कर गया। उसने अपने माँ बाप और भाइयों से मुखातिब होकर कहा, आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अब आप लोगों की बात मानूंगी? जब मैं बेकसूर थी और रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करती रही, तब आप में से किसी ने मेरा यकीन न किया। मुझे नफरत और हकारत की नज़रों से देखा। 1 महीने तक किसी अछूत की तरह सलूक करके मुझे बर्दाश्त किया गया। अब मैं अपने शोहर और बेटी के साथ अपने घर में सुकून से हूँ। आलियान ने आप लोगों को शायद इसीलिए बुलाया कि मुझ पर लगा दाग धो सके। अगर मुझे मालूम होता कि ये आप लोगों को बुलाने वाला है तो मैं उसे ऐसा न करने देती, क्योंकि मुझे आप जैसे बेहिस लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। आलियान की तरह मुझे भी आप सबसे नफरत हो चुकी है। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ ठहरी नहीं थी। उसके माँ बाप, चचा सब शर्मिंदा चेहरों के साथ वापस चले गए। आलियान रात को कमरे में आया। वो दोनों पाँव बेड से नीचे लटकाए बैठी अपनी बेटी राहा को फीड करवा रही थी। वो खामोशी से एक साइड पर बैठकर उसके फारिग होने का इंतजार करता रहा। जब वो राहा से फारिग हो गई तो आलियान की तरफ मुतवज्जा हुई, जो उससे कुछ कहना चाहता था, अगरचे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आलियान का हर अंदाज ही चीख चीख कर बताता था कि वो उससे अपने साबका सलूक पर शर्मिंदा है। कुछ कहना है आपको? उसे झिझकता देखकर बिलाखिर राशा ने खुद ही उसे मुखातिब कर लिया। हाँ, कहना है। आलियान उठकर उसके करीब आ बैठा। क्या? राशा को लगा वो सॉरी कहेगा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ राशि। आलियान के अल्फाज ने उसे हैरत ज़दा कर दिया। वो कुछ बोल न सकी। आलियान कुछ पल खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर नरमी से खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये खामोशी मुआफी थी। फिर कुछ अरसे बाद राशा को यकीन हो गया कि वो शख्स वाकई उससे इश्क करता था। एक पल के लिए वो उसकी निगाहों से ओझल होती तो आलियान शाह की तो जैसे सांसें रुकने लगती थी। तुम जब नजर नहीं आती हो तो मेरा दिल रुकने लगता है राशि। आलियान के बेकरारी से कहने पर वो हंस पड़ती। तुम भी अजीब हो आलियान। जितनी तुम्हारी नफरत शदीद थी, अब तुम्हारी मोहब्बत उससे भी शदीद है। मुझसे ना वो सही चाहती थी और ना अब ये। क्या मेरा इश्क तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है राशि? वो घबरा कर इस्तफसार करता जवाबन वो हंसकर कहती कि नहीं, ऐसे ही मजाक कर रही थी। उसका लास्ट सेमेस्टर रह गया था। आलियान ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए उसे वो एग्जाम्स दिलवाया था। डिग्री मुकम्मल होने पर वो बहुत खुश थी। जरनाब के बारे में उसे आलियान से पता चला। वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजारने एक होटल में गई तो वहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों को बुला लिया और उन सब ने उसके साथ इज्तमाही ज़्यादती के बाद उसकी जान ले ली थी। उसने आलियान से पूछा, तुम्हारे उस दोस्त फहद का क्या हुआ जो जरनाब से मोहब्बत करता था? तो जवाब में उसने बताया वो झूठा था, मोहब्बत नहीं करता था। आलियान ने उसका साथ मजबूर होकर दिया था क्योंकि उसके बाप की मदद से आरिस भाई ने बिजनेस को संभाला था। राशा को जरनाब के इंजाम पर अफसोस हुआ था। कई दिन वो अफसरदा रही, फिर अपनी लाइफ में मगन हो गई। राहा के बाद रूमी ने आकर उनकी फैमिली को मुकम्मल और रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। आलियान शाह का इश्क वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि मजीद बढ़ता जा रहा था। ख़त्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये मुकम्मल नावल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नावल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर नया नावल आप तक पहुंचता रहे।
کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.